Hello everyone, welcome to Blessy Institute. Yesterday we studied exercise 1.1 of chapter number 1 set theory or sets, right? Today we are going to start exercise 1.2. For that we have some definitions of this chapter. The first definition is empty set or null set or void set. You know everything is not new for you. एवरीथिंग यू लर्न ऑलरेडी, आप सब कुछ पढ़ के आए हो. सो ये सारी डेफिनेशंस आपको रिवीजन होगी क्योंकि आपने पहले से पढ़ी हुई है, जस्ट हमें रिवाइज करनी है. एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट, अ सेट which does not have any element, a set which is not containing at least one element, a set which is empty set, no elements are there, is called empty set. So in which way we can say? So by property method we can give the answer. Set A is set of X such that X belongs to N and X less than 0. Now tell me, which and how many elements are there in this set? No element. Why? Because we know that before such that is called the element of the set, whereas after such that called conditions. जो such that के पीछे लिखा है उससे हम कंडीशंस कहेंगे, और जो सच दैट से पहले है उससे हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ द सेट. हियर सी वी हैव टू कंडीशंस एंड व्हिच आर बोथ द टोटली कॉन्वर्स. दोनों एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट है. फर्स्ट कंडीशन इज सेइंग x इज नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. द सेकंड कंडीशन इज सेइंग द नंबर और x मींस एलिमेंट शुड बी नेगेटिव. मतलब दोनों का कहीं पे भी कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है. बोथ द कंडीशंस आर टोटली कॉन्ट्रास्ट मींस a does not have any element, therefore the set A is called empty set or null set or void set. It is one of the notation. Second one is also phi. Phi is also one of the notations. So in two ways we can represent null set, empty set or phi. Clear? Now second definition, singleton set, a set which has only one element. A set which has only one element, which contains only one element, is called the singleton set. उसके नाम के अंदर ही पूरा का पूरा मीनिंग वहीं पे दिख रहा है हमें. सो कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन तो आपको पता ही है, पूछने वाला कोई है नहीं. थियरी हमें पूछी नहीं जाती है क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ सम्स आएंगे. नो राइडर, नो डेफिनेशन, नो थियरी, नो कॉरोलरी, कुछ भी नहीं आएगा. Remember it, सिर्फ और सिर्फ sums. So the definition of singleton set is what? A set which has only one element. तो मैं इसे नोटेशन में लिख रहा हूं. Set B, suppose set B equal to set of X belongs to N such that mod X equal to 1. अभी देखिए, x belongs to n such that mod x equal to 1. When we can say mod x equal to 1? When the values of x are minus 1 and 1. See, when we take x equal to 1, modulus 1 gives 1. When we take x equal to minus 1, modulus minus 1 will be 1. Means x can be minus 1 or 1. But it is a condition, so it is one of the ways to represent the set. मैंने एक कंडीशन को आगे लिख दिया जब तो यहाँ पे ऐसे लिखा था, so it is also one of the ways. ये वे में भी आप सेट को लिख सकते हो. यहाँ से दो चीज डिफाइंड हो रही है, दो चीज यहाँ से बन रही है. फर्स्ट इज एलिमेंट इज x, सेकंड इज एलिमेंट इज नेचुरल नंबर. यहाँ से हमारी दो चीज बन रही है, अब ध्यान रखना. तो एलिमेंट x है, नेचुरल है और उसका मॉड्यूलस 1 है. तो भाई x would write I have two values -1 and 1, but due to this condition -1 वहां पे आएगा नहीं. तो सिर्फ और सिर्फ 1 will be the element of this set and therefore
set B is called singleton set, which has only one element, that is 1. The name of element is 1 and the number of element is 1, right? Now finite set. A set which has countable elements is called finite set. A set which has countable elements is called finite set. मतलब ऐसा सेट कि जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सके. अगर एलिमेंट ही काउंट नहीं कर सकते हैं सो वो बनेगा इनफाइनाइट सेट. तो इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन ऐसी रहेगी, अ सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. A set which is not finite is called infinite set. तो finite set की definition क्या होगी? A set which has countable elements is called finite set. अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो देखो, set A is equal to set of x belongs to n such that x less than 6 and x is not equal to 1. अभी आप इसमें एलिमेंट डिफाइन करो. Which elements are there? चेक. चलो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए. x should be less than 6. It is natural. तो can take 1. But when we take 1, this condition is saying कि x equal to 1 is not possible, so cannot take. For 2, yes, yes, yes. For 3, yes, yes, yes. For 4, for 5. The number should be less than 6. मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स मिलेंगे. There are only the 4 elements which we can count. So it is called finite set. If the set is not finite, it's called infinite set. या तो आप ऐसे बोलो कि a set which have infinite elements, a set which have infinite elements is called infinite set. जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, set of A x belongs to R such that, ओहो सर आपने तो 2 ही एलिमेंट लिखे 1 and 2. सोचो सोचो, देखो देखो. X is real number. Tell me how many real numbers between 1 and 2? Infinitely many. आप ऐसा सोचोगे 1.1, 1.2 till 1.9 and 2. But between 1 and 1.2 there are infinitely many numbers which are 1.01, 1.02, 1.09. Then 1 and 1.01 के बीच में वापस infinitely many elements है 1.001, 1.002, 1.0. मतलब the set is containing infinitely many elements. Therefore, this set is called infinite set. And the last definition, equal sets, is very easy definition. आप खुद इसे समझ सकते हो. If A has ABC and set B has also ABC, then A and B are called equal sets. मतलब दोनों के पास अगर वही के वही एलिमेंट्स है तो वो बनेगा, तो वो दोनों बनेंगे equal sets. In other way we can say, see, all the elements of set A are the elements of set B, means A is a subset of B. All the elements of set B are the elements of set A. Therefore, B is a subset of A. Means both are subset of each other. That implies we can say A and B are equal sets. A and B are equal sets. तो ये सारी जो डेफिनेशंस है वो 1.1 से पहले है जो हमने देख ली. इसके बाद में स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 1.2. सो 1.2 के लिए आगे चले.
एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट? भाई नल सेट के एग्जांपल्स कौन है? मींस गिवन सेट इज नल सेट और नॉट, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अभी देखो कुछ समझ में आ रहा है? एक चीज, odd and divisible by 2. Is there any controversy? The number is odd, also divisible by 2. भाई लाइफ टाइम अभी तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि नंबर ऑड हो और 2 से डिविजिबल हो। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, कोई मैथमेटिशियन ने बनाया नहीं है। अगर आपने बनाया हो तो मुझे बोलना, तो मैं यहाँ पे इसका इलस्ट्रेशन दूंगा। अगर आपके पास भी नहीं है तो ऑब्वियस दिस सेट विल बी नल सेट, कैन से एम्प्टी सेट, वाइड सेट, आप कुछ भी लिखो, बिकॉज इट डजंट हैव एनी एलिमेंट। मेरे पास नहीं है, आपके पास हो तो बोलना, तब तक तो मेरा ये आंसर राइट है। जैसे ही आपका मैसेज मिलेगा आई विल राइट इट। सो इट इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ null set. Then question number 2. The question number 2 is saying set of even prime numbers. Which are prime numbers? See, prime numbers में यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, this. प्राइम नंबर आपको भी पता है कि भी जिसके दो ही फैक्टर्स हो, वन एंड इटसेल्फ, अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो दो के दो ही फैक्टर है 1 and 2, 3 के दो ही फैक्टर है 1 and 3, 5 के दो ही फैक्टर है 1 and 5, 7 के दो ही फैक्टर है 1 and 5. So all these numbers are the prime numbers, but only 2 is even prime number. Only 2 is even prime number. So इसका आंसर होगा set of 2, which is called singleton set. But question is what? Our set is empty or non-empty? तो यहाँ पे हमें लिखना है which is non-empty. Which is non-empty set. Clear point? तो ऐसे और दो क्वेश्चंस आपके पास बुक में है। Every time with book अटेंड द लेक्चर्स, विदाउट बुक कभी भी लेक्चर में बैठना नहीं है, बुक आपके पास होनी चाहिए, रिमेंबर इट। तो बाकी की जो दो क्वेश्चंस है मैं वो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? भाई जो दिए हुए सेट्स है उसमें से विच आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। अभी मैंने आपको समझाया कि भाई सेट के पास अगर काउंटेबल एलिमेंट्स है तो वो बनेगा फाइनाइट, अगर अनकाउंटेबल है तो बनेगा इनफाइनाइट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। भाई कोई भी ईयर में कितने मंथ्स होंगे? ऑब्वियस 12। अब कोई भी कैलेंडर ले लो, इंग्लिश ले लो या इंडियन ले लो, सबके पास 12 मंथ्स है। 12 मींस वी कैन काउंट, सो काउंटेबल एलिमेंट्स है, मींस इट इज फाइनाइट सेट। Getting or not? It is finite set. Now it is set of numbers 1 2 3 dash 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 का मतलब मैथमेटिक्स में होता है the process is endless। इसका मतलब होता है process is endless, it does not have end। ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आप भले रुक जाओ, आप झुक जाओ, आप लुढ़क जाओ, पर ये रुकेगा नहीं। समझ गए नहीं? समझेंगे नहीं? तो इसके पास infinitely many elements है which we cannot count, so this set is called infinite set. This set is called infinite set. Getting? तो यहाँ पे भी 2-3 और क्वेश्चंस है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। तब तक के लिए ये डेफिनेशंस
ये सम्स होमवर्क में दिए वो सम्स आप रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर में और डेफिनेशंस और एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। और याद रखिए, अगर वीडियो आपको लाइक होता है तो लाइक करो और सब्सक्राइब चैनल को करना भूलना नहीं। ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू, बाय बाय।